of Obama, because Obama's victory in a sense was also as unconventional as this one. Thank you for joining me on the broadcast. And now moving on. Now a light haze continues to blanket Delhi even as the city's air quality showed marginal improvement from very poor to poor. The overall air quality index stood at 230 this morning. According to the Central Pollution Board, areas like ITO and Akshardham are worse off, with AQI levels touching 281 early in the morning. The air was slightly cleaner than yesterday evening's 291, but still far from healthy. Officials blame the post-Diwali dip in wind speed and cooler temperatures for trapping pollutants close to the ground. Since the festival on October 20, air quality in the national capital has oscillated between poor and very poor as smog refuses to lift. And viewers, NewsX is now getting you multi-city reporters. We have our reporters spread out in the Delhi NCR region, and we're going to give you a bit-by-bit update of all the areas there. So joining me is Arzu Seth, who's of course live from Mandi House. I have Bhavna Sisodia from India Gate, Ali Khan from Noida, and Gulshan Grover from Gurugram. I want to go across to Arzu Seth from Mandi House. Arzu, my first question to you is that Mandi House, of course, is very important, is close to a very, very important area, the seat of the power in Delhi. So a very prime location there. Now, my question to you is, what is the AQI level there, and what do you see any water sprinklers as of today morning? Well, if we talk about today's AQI is slightly better than previous days, as it has reached to the poor category. From very poor, today's overall Delhi's AQI is 228. So that's come under the poor category. It's not better, it's not like in very poor category, but yes, there is a slight improvement than yesterday also, as the AQI was more than 300. Today, if we talk about the red zone areas, there is only one red zone area, which is Shadipur, where the AQI is more than 300. Rest other places in the national capital, the AQI is below 300. So I think because of the wind speed or the atmospheric changes, there is some relief that people are getting from smog and also from the air pollution. But yes, still there is a lot of scope for the improvement, as the air quality is still in the poor category. And also, if we talk about the Mandi House area, as of now, there is no water sprinkler at this particular place. But yes, there are a lot of water sprinklers, or we can say thousands of officials are on ground to ensure there is no dust on the roads. Also, what we are being told by the government, that 1,200 officials are also ensuring that there is no open burning. Yes, there are cases of open burning taking place in the national capital. Also, we saw sweepers cleaning the road without spraying water, and this is one of the major issues that government needs to keep close eye on, because there are a lot of areas where there are dusty roads, and the sweepers continue to swipe the road with that in that way only. So there is a dust particle that goes in the atmosphere, and there is a pollution, smog that we see in the atmosphere. So definitely the government needs to take more measures to combat with the pollution in the national capital. Yes. All right. Now, of course, I have Bhavna Sisodia with me from India Gate. Bhavna, the AQI levels in India Gate, and have you spotted any water sprinklers since morning? देखिए, मैं इस वक्त इंडिया गेट में मौजूद और यहाँ के AQI लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल जो है फिलहाल 200 तक बना हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सुबह के समय एक धुंध की चादर, एक पॉल्यूशन की लेयर जो है इंडिया गेट पर देखने को मिलती थी, वो धुंध की चादर जो है सूरज चढ़ने के बाद जो है वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि दिल्ली का AQI लेवल बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुँचा हुआ था। ये कहा जा सकता है कि अब जो AQI लेवल है वो खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगर देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के बदलाव के कारण दिल्ली में जिस तरीके से तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन पे जो है खासा असर देखने को मिल रहा है। अगर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन की बात की जाए तो देख सकते हैं
कि इंडिया गेट के जो रोड्स हैं वहाँ पर किसी भी तरीके की वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। सरकार ये दावा करती है कि सरकार द्वारा जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जगह जगह पर चलाई जा रही है, वहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट जो है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के बाद जो दिल्ली का AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में था, अब वो कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में पहुंचा है, यानी कि कुछ गिरावट जो है AQI में की गई है। वहीं अगर IMD की बात की जाए तो IMD के मुताबिक जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियों दस्तक देंगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी विभोग में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हवाओं की गति जो और तेज़ होगी, उस वजह से दिल्ली में AQI लेवल में जो है आगे भी गिरावट देखी जा सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बेहद ही खराब श्रेणी से अब AQI लेवल जो है खराब श्रेणी में पहुंचा है, और अगर पश्चिमी विभोग के बदलाव के कारण दिल्ली में असर आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है AQI लेवल में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। Alright, I have Ali Khan also joining me from Noida. Ali, नोएडा में AQI लेवल कितना है अभी? वैशाली, नोएडा के AQI की बात करें तो एवरेज AQI 230 के आसपास अभी बना हुआ है, और सुबह की अगर बात करें जो अर्ली मॉर्निंग 250 के आसपास था। वहीं अलग अलग इलाकों की बात करें, नोएडा के सेक्टर 62 का AQI इस टाइम मॉडरेट कैटेगरी में 170 के आसपास है। वहीं सेक्टर 125 की बात करें तो वहां का AQI इस बार अभी भी 300 से ऊपर बना हुआ है। तो अलग अलग एरिया की कैटेगरी अलग अलग AQI नजर आ रहा है। पर आपको बता दूं कि सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जो कल के कंपैरिजन में आज का AQI काफी बेहतर नजर आ रहा है। ये सिर्फ विंड स्पीड की वजह से, क्योंकि हवा की जो स्पीड है वो तेज हुई है। कल जो हवा की स्पीड थी काफी कम थी, पिछले 2 दिनों में हवा की स्पीड काफी कम रही, तो AQI काफी बढ़ा हुआ था। पर जैसे ही आज सुबह से हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, AQI काफी मॉडरेट से पुअर कैटेगरी में आ चुका है। वेरी पुअर था पर अब पुअर कैटेगरी में नजर आ रहा है। तो ये लोगों के लिए अच्छा संकेत है कि अगर हवाएं चलती हैं तो AQI कम होगा, और एक राहत की सांस लेने की बात लोगों के लिए नजर आ रही है। पर वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें, तो आप जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या वाटर स्प्रिंकलर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह से ही ग्राउंड पे हूँ, निरीक्षक टीम लगातार ग्राउंड पे है। कहीं भी कोई वाटर स्प्रिंकलर अभी तक कहीं आइडेंटिफाई नहीं हुए कि कहीं दिखाई दिए हों कि कहीं वो वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन कहीं दिखाई दी हों। अगर वो कहीं दिखाई दे भी रही हैं तो वहीं दिखाई दे रही है जहाँ आला अधिकारियों के घर मकान हैं, उनके रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पे अच्छे से वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, मैकेनिकल स्वीपिंग करी जा रही है। पर आम और जगहों की बात करें तो ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम नजर आ रहे हैं अगर आ रहे हैं। जी अली, क्योंकि पूरी दिल्ली नोएडा में वाटर स्प्रिंकलिंग करनी भी एक चीज़ ये नामुमकिन ही है एक तरह से देखा जाए तो। नाउ मूविंग ऑन टू गुलशन ग्रोवर फ्रॉम गुरुग्राम। गुलशन, सवाल मेरे वही है, पहला है कि AQI लेवल कितना है गुरुग्राम में, और क्या आपको वाटर स्प्रिंकलर्स दिख रहे हैं आज या कल में? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 दर्ज किया जा रहा है, और सुबह जब हमने लगभग 7 बजे के करीब देखा था कि आसमान पर सफेद चादर से जो पूरा आसमान है वो ढका हुआ था। हालांकि जैसे ही सूरज निकला है तो इस समय आसमान जरूर अभी कुछ नीले जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सफेद चादर है वो जरूर दिखाई दे रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग की बात करें या फिर स्वीपिंग मशीनों की बात करें या फिर जिस तरह टैंकरों की बात करें, तो ये अभी ग्राउंड स्तर पर नहीं नजर आ रहे हैं। ग्रैप का स्टेज 2 जो है वो लागू है, लेकिन उसकी जो पालना है, जो उसके नियम है, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गुड़गांव में जो निर्माण कार्य है वो धड़ल्ले से जारी हैं, चाहे बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों में हो या निर्माण कार्य घरों में जो होते हैं, या वो हो नए घर बन रहे हो, उसमें देखा जा रहा है। वहाँ किसी भी तरह का कोई ग्रीन नेट लगाकर निर्माण नहीं किया जा रहा है, ना ही जो डस्ट जो खुले में पड़ी हुई नजर आ रही है, ना उस पर कोई नेट ढका हुआ नजर आ रहा है, ना वहां पर कोई छिड़काव नजर आ रहा है। और जो नियम है उनकी उल्लंघना जो है वो साफ तौर से देखी जा रही है। बेशक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हो या उनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नर मॉनिटरिंग के लिए लगाए हो, वो लेकिन वो ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई चालान नहीं हुआ है। यदि अगर वो काम करेंगे धरातल पर तो ऑब्वियस है कि कुछ चालान करेंगे, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आएगी, लेकिन अभी लोग भी इसको हल्के में ले रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से तमाम जो लोग हैं वो मरीज जो है जरूर अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत के मरीज, जो अस्थमा के, जी गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड व्यूअर्स, नाउ वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. There's a lot more coming up on the other side. Stay with us.